हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्रिएटिव कन्या। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दिस एक्सेसरी बॉक्स। इस बॉक्स के पार्टीशंस आर रिमूवेबल और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ एक टीनेजर के लिए। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम दिस टू हाँ, ऐसे थोड़ी बता दूंगी। थोड़ा बहुत आपने देखा होगा थंबनेल पे, बट वेट एंड वॉच व्हाट आई डू विद दिस एंड लेट्स मूव। बट उसके पहले ऑब्वियसली यू हैव टू वॉच द इंट्रो वीडियो और इस बार जंगल में शूट के देखो। Hey guys, welcome back to the Creative Kanya and my name is Garima. I make videos on DIY art and craft. If you are new here, please consider subscribing to the channel and let's move to the video and don't forget to like and share it with your friends. So I'll start by removing the hardware. वो important है, नहीं तो वो पूरा हार्डवेयर पे पेंट वगैरह लग जाता है. So we will remove all the hardware, पीछे के hinges and आगे का hook, everything. तो सबसे पहले मैं अपना कलर मिक्स कर रही हूँ विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाइट, क्रिम्सन एंड स्कारलेट लेक। और मैंने थोड़ा सा ऑरेंज ऐड किया है बट विच इज़ नॉट वर्मिलियन, इट्स एक्चुअली स्कारलेट लेक का ही एक शेड है। और आई एम ट्राइंग टू मैच द कलर विद द टिश्यू पेपर दैट आई एम गोइंग टू डेकोपाज ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारा कलर मिक्स कर रही हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि बाद में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैच द सेम कलर जब आप मिक्स करते हो। सो इफ़ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट लाइक दैट, मिक्स इनफ कलर सो दैट आपको बार बार कलर मिक्स ना करना पड़े, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बॉक्स को पेंट कर रही हूँ एंड बिफोर पेंटिंग द बॉक्स मैंने उसके सारे पार्टीशंस भी रिमूव किए हैं एंड आई विल बी पेंटिंग द पार्टीशंस ऑल्सो विद द सेम कलर। Keep in mind, I am not applying a very thick coat of paint, but I'll be applying 2 coats of it. तो मुझे पता है इस टाइम आपको लग रहा होगा लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट, बट स्टे विद मी हियर। मैं फर्स्ट कोट को ड्राई कर रही हूँ और साथ साथ सेकंड कोट भी अप्लाई कर रही हूँ और सेकंड कोट में स्पॉन्ज से अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो एक इवन फिनिश आए और ब्रश मार्क्स ना दिखें। सो इट्स वेरी सिंपल टू डू दिस। आप पहले ब्रश से पेंट लगाते हैं एंड यू जस्ट मिक्स इट विद द स्पॉन्ज, painting the inner side of the box, the edges and everything very properly. Ensure that there are no areas left unpainted and you have to apply 2 coats everywhere. And don't forget to clean the table before it dries on the table because then you will not be able to get it off the table. I have similarly painted the lid of the box with a mixture of emerald green and white. The process is same. You do the first coat with the brush and second coat with a sponge for a complete finish. So in the next step, I am going to decoupage this lovely tissue with flamingos on the top of the lid. For that, I am applying a layer of Mod Podge. Now as a next step, I am placing the tissue on the box. It is very simple. Make sure that you remove all the creases or air bubbles that are being formed in the process, and then to seal the whole thing, I am putting another layer of Mod Podge over the tissue. After completing the layer of Mod Podge, I will tear off the excess tissue carefully and clean the edges. As a design decision, I decided to place the name and make this box personalized. Since I'm using small pieces of MDF here, I decided to go from right to left in order to ensure that at the end I am not left with any excess space and the name looks absolutely perfect. Now on the box, I am making some leaves and flowers. This is actually in line with the design that is placed on the lid. And I will be covering all the sides of the box with a similar design. My color palette for making these design remains the same. I'm using a brown to make the stems, an emerald green to make the leaves, and scarlet lake to make the flowers.
Now I'm adding some small dots to fill up the design and make it look complete. I will repeat the process on all 4 sides of the box and also on the sides of the lid. अब मैं यूज़ करूँगी कैमल पिक्चर वार्निश्ड इन ऑर्डर टू सील द होल पीस। 2 दिन पहले अच्छे से पीस को सूखने देना है वार्निश करने के पहले। वार्निश करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं उसको एक सॉसर में ले रही हूँ और उसके बाद मैं ब्रश से वार्निश लगाऊंगी। ऑब्वियसली वार्निश को ब्रश से लगाने के लिए ब्रश को टाइम पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाइल वी वार्निश हम डिस्कस करेंगे कि वार्निश ब्रश का ध्यान कैसे रखना है। तो वार्निश करते टाइम हमेशा पीस को टेढ़ा रखना है ताकि कहीं भी वार्निश आपकी पूल ना करे, एक जगह इकट्ठी ना हो। और ऑब्वियसली वार्निश तभी यूज़ करनी होती है व्हेन इट इज़ वेरी थिन, थिक वार्निश यूज़ नहीं करनी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई वार्निश के बारे में। अब बात करते हैं कि वार्निश ब्रश को कैसे क्लीन करना होता है। एक्चुअली वार्निश का ब्रश सेपरेट रखना चाहिए। डोंट यूज़ एक्सपेंसिव ब्रशेस फॉर वार्निश, ख़राब हो जाते हैं ब्रशेस। दूसरी चीज़, जब वार्निश ब्रश को साफ़ करें तो पहले उसको टर्पेंटाइन ऑयल से एक बार अच्छे से क्लीन कर लें। टर्पेंटाइन ऑयल से 2-3 बार अच्छे से निकालने के बाद साबुन से वॉश करना पड़ता है, वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एंड देन यू कैन ड्राई द ब्रश। वार्निश को ब्रश पे ना सूखने दें, नहीं तो आपका ब्रश हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वार्निशिंग करने के बाद ब्रश को इमीडिएटली धोना है और उसके बाद उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है क्लीन करने का। सिंस हमने पार्टीशंस को भी पेंट किया था तो वी हैव टू इंश्योर दैट पार्टीशंस आर ऑल्सो प्रॉपरली वार्निश्ड। तो सारे पार्टीशंस को वार्निश करेंगे एंड लेट देम ड्राई, ओनली देन वी विल असेंबल आवर बॉक्स। Our varnish has completely dried, and after the varnish has dried, everything is sealed and perfect. I am placing the hardware back. Remember, we already have the markings of the hardware, so I don't have to do much here. I'm just using a screwdriver and screwing all the screws back in. So after setting everything, I'm just checking if it is working smoothly or not, and then we'll be completely done. Now let's take the final look on how the piece looks like, and I think it looks divine. We will place all the partitions and then I will place all the accessories that I have bought for this piece.
आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा और आप खुद ये ट्राई करेंगे क्या। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Welcome back and thanks for watching the video. I hope you have already subscribed to the channel. If you haven't already, please do so. Also follow me on Instagram. It would be a huge support for me. Thank you.